Good morning, class 6th. Today we are going to study in your English grammar chapter number 10 the ing form of the verb. The ing form of the verb has the more importance. The two functions are very important in the ing form of the verb. That where is the use of ing form in the form of a gerund, and another is the ing form is used in the form of a present participle. So where is the gerund? Gerund, if it has the force of a noun, then it is known as the gerund. In the case of gerund, there is a ing form of the word which having the force of a noun. Like some examples here, swimming is a good sport. Here in this case, swimming, it is used here in the form of a noun. He is fond of swimming. So here swimming is used in the form of a noun. Smoking is harmful for health. Here again smoking is used as a noun. You should give up smoking. Smoking is used in the form of a verb. So where the words of the ing forms are used in the form of noun or pronoun, that is called as gerund. Okay. Now we come on the participle form. Participle form, in this case, there is a ing form is used in the form of an adjective. And it means where the force of an adjective is that of a verb. It means the gerund is always used in a verbal noun, or the present participle is always used as a verbal adjective form. Okay, like here are some example of present participle. My mom is a working lady. So here the working ing form is used before any noun. Okay, it's showing the adjective of this lady. So lady is what type of lady? Here is a working lady. He boarded a running train. So train is what type? Running. Okay, so it's showing the present participle. The boy was laughing. What was the boy doing? Laughing. It means it's showing the adjective of this boy. We will be staying. So where the position is showing of us staying, it is also showing in the form of an adjective, verbal adjective. So where the verbal adjectives are used, there is a form of a present participle in the ing form. And when the verbal nouns are used in before any type of noun or pronoun or noun, mainly nouns, or where the ing form is used in the form of a noun, here is called as gerund. बच्चों देखिए, इसमें मैं आपको दो फॉर्म बताती हूँ आईएनजी के. एक है जिरंड और एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल. एक बात याद रखिए कि जिरंड जो होता है हमेशा वो वर्बल नाउन है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? वो एडजेक्टिव है. यानी कि कभी भी आपका आईएनजी फॉर्म अगर जैसे यूज हुआ तो वो अगर नाउन के फॉर्म में है तो वो क्या शो करेगा? जिरंड. लेकिन अगर वो आईएनजी फॉर्म किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग गया और वो उस नाउन की विशेषता को शो कर रहा है, एडजेक्टिव को शो कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल. ऐसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे आ सकते हैं जो आपको इसमें डिफरेंस भी बताएंगे. जैसे आप मान लीजिए लिखा यहाँ पे, नमन लाइक्स ईट ऑरेंजेस बट ही डिसलाइक्स पील देम. नमन लाइक्स ईटिंग ऑरेंजेस, ओके, बट ही डिसलाइक्स पीलिंग देम. तो यहाँ पर ऑरेंजेस के पहले ईटिंग आया, ईटिंग ऑरेंजेस. तो हमें यहाँ पे क्या पता लगा? ये पार्टिसिपल के फॉर्म में, क्योंकि ऑरेंजेस की विशेषता कैसी? ईटिंग ऑरेंजेस. बट ही डिसलाइक्स फीलिंग दैम, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है. देव सॉ अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स. ये गर्ल को देख रहा है जो कि क्या कैरी कर रही है? बास्केट ऑफ फ्लावर्स. उसकी विशेषता है ये, तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में हुआ. या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि दे हैड अ ड्रिंक ऑफ द स्पार्कलिंग वाटर. स्पार्कलिंग वाटर यानी कि वाटर की विशेषता कैसा है? स्पार्कलिंग है, तो वो क्या शो करेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये वाला देखिए, अ लाई विटनेस आउट टू बी पनिश्ड, या लाइंग, या अ लायर विटनेस आउट टू बी पनिश्ड. तो यहाँ पर जो या फिर ऐसे अ लाई को कहेंगे लाइंग. तो लाइंग क्या आ जाएगा यहाँ पर? लाइंग विटनेस, यानी कि लाइंग जो होगा वो यहाँ पर जिरंड के फॉर्म में यूज होगा. द क्रीकिंग डोर, कैसा डोर है? क्रीकिंग डोर. अवेकन द डॉग. तो क्रिकिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर क्रिकिंग जो होगा वो जिरंड के फॉर्म में हो जाएगा. लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखें, बॉयज स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज नाउ. डूइंग आया
अब यहाँ डूइंग बीच में आया है तो ये क्या शो करेगा, पार्टिसिपल। देयर टीम प्लेड आ लॉसिंग गेम, लॉसिंग गेम, गेम कैसा है, लॉसिंग है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल शो रहा है क्योंकि इसका एडजेक्टिव शो कर रहा है। रॉल स्टोन, तो यहाँ पे करेंगे आ रोलिंग स्टोन, कैसा स्टोन है, रोलिंग, यानी कि स्टोन नाउन है, नाउन के पहले क्या गया, रोलिंग, यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, ये जिरंड है बच्चों यहाँ पर। ओके, रोहित हेट्स गोइंग आउट इन द रेन, गोइंग आउट इन द रेन, यहाँ पर गोइंग आ गया और ये गोइंग इसकी विशेषता बता रहा है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्टॉप राइटिंग, अब स्टॉप राइटिंग, राइटिंग पहले आ गया तो ये क्या शो करेगा, ये नाउन शो करेगा, यानी कि जिरंड शो करेगा। पहले आ गया तो पहले आईएनजी फॉर्म आता है तो हमेशा वो जिरंड शो करता है। द प्लम्बर रिप्लेस द लीकिंग पाइप, लीकिंग पाइप, पाइप कैसा है, लीकिंग, इसकी एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका पार्टिसिपल हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नमित बिगैन लुकिंग फॉर द मिसिंग पेपर, बेटा मिसिंग पेपर्स, मिसिंग पेपर्स यहाँ पे शो करेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि पेपर एक नाउन है, उसके पहले आ गया मिसिंग, उसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, तो मिसिंग पेपर, मिसिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन लुकिंग फॉर, तो लुकिंग क्या आ जाएगा, लुकिंग आपका सिंपल एक वर्ब के फॉर्म में यूज हो रहा है, नाउन की तरह यूज हुआ, यहाँ पर जिरंड है। ओके, लुकिंग। मैनी चिल्ड्रन लाइक कमिंग टू स्कूल बाय बस, कमिंग टू स्कूल बाय बस, दिस इज ऑल्सो शोइंग द जिरंड। थैंक यू फॉर लैंडिंग मी योर इंग्लिश ग्रामर बुक, लैंडिंग मी, ये जिरंड शो कर रहा है, तो जिरंड एक ऑल्सो, एक जिरंड क्या होता है, नाउन फॉर्म में। अब मैं बताऊंगी पॉसेसिव केस में अगर जिरंड का यूज किया गया है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन का, तो वो हमेशा पॉसेसिव केस के पहले, जैसे यहाँ पे करेक्ट देखिए क्या है, ही डिड नॉट लाइक रियाज ज्वाइनिंग द डांस क्लब, तो डांस क्लब की पहले रियाज ज्वाइनिंग, ये पॉसेसिव केस, तो ये करेक्ट है। डू यू माइंड माई स्मोकिंग हेयर, मी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे स्मोकिंग आएगा, स्मोकिंग के पहले माई आएगा, वो करेक्ट है, यानी कि वर्ड स्मोकिंग एक जिरंड है क्योंकि नाउन के फॉर्म में यूज किया गया, देयरफॉर इज मस्ट हैव बिफोर इट इज द पॉजिटिव फॉर्म, यानी कि इसको पहले पॉजिटिव फॉर्म में आना चाहिए। पॉजिटिव फॉर्म कब आएगी, जब माई लगेगा। कुछ एग्जाम्पल देखिए, ही स्टॉप्ड माई नॉट मी कमिंग हेयर, तो ही स्टॉप्ड नॉट मी कमिंग हेयर, तो यहाँ पर अ मैन्स फ्यूचर डिपेंड्स ऑन हिज नॉट हिम, नॉट हिम का यूज किया, ऑन हिज वर्किंग हार्ड, तो ये आपका जिरंड फॉर्म में यूज किया गया। तो आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन, और कीप वॉचिंग दिस लेसन अगेन एंड अगेन, सो it is well understand by you again and again when you look this chapter. okay, तो बच्चों आप यहाँ पर बार बार इस चैप्टर को पढ़िए ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आए। कुछ और छोटे छोटे एग्जाम्पल भी, जैसे आई हैव नो फेथ इन हिज कीपिंग हिम्स प्रॉमिस, तो यहाँ पर भी ये कीपिंग हिज प्रॉमिस, देखिए बीच में कीपिंग आ गया, तो ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पर जिरंड शो कर रहा है। वी हियर्ड ऑफ देयर पासिंग द एग्जाम, तो पासिंग द एग्जाम ये वर्ब के फॉर्म में, यानी कि ये नाउन के फॉर्म में भी यहाँ बीच में यूज हुआ, नाउन तो नहीं कह सकते, वर्ब, पॉसेसिंग वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है ना, पासिंग द एग्जाम, तो ये जिरंड है। ऑल डिपेंड्स ऑन मोहन्स अग्रीइंग टू इट, तो यहाँ पर एग्रीइंग टू इट जो है मोहन्स के लिए, मोहन का एपोस्ट्रोफी एस, तो जहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस है वो उसके बाद आईएनजी फॉर्म आई है, तो ये क्या शो करेगा, ये जिरंड शो करेगा। ओके, सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस video again and again to well understand with this lesson, and please subscribe my channel and share these videos too. Okay, bye bye.